साथ ले आए, मैम नाम बोलते जाएंगे उसके हिसाब से आए। हाँ ऐसे ही बोलती हूँ। सलोनी मौर्य, बीटेक सीएस फाइनल। The government will be made and destroyed. The parties will be made and destroyed. But this country should be alive. The government, the democracy of this country should be alive. A very warm good morning to one and all present over here. I, Saloni Moria, student of BTech Computer Science and Engineering, is here to speak on the topic that is India, Mother of Democracy. So firstly, let us know what democracy is. So basically, democracy is the combination of two words, that is demos and kratos. Demos means the people and kratos means the power of rule. So it is the combination of these two Greek words. Basically, democracy is that in which the citizen of the society have the power to elect their representative and works on behalf of them. We have seen in history the French Revolution, the War of Independence of Americans, the Indian struggle of power. These all have shown the democracy in them. So we should now know what is the history of democracy. So this thing, India, the mother of democracy, where this question arises or where this phrase has come from. So let me tell you, in the Independence Day speech of our respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he has taken the name of a village, that is Uthirameru. So what is the unique thing in this village that our PM has taken the name of this? So let me tell you, Uthirameru is a village in Tamil Nadu. So in that village, the temples were made. In that temples, the inscription shows the best model of the democracy in India. That's why our Prime Minister has taken the name of Uthirameru. So what they done is, in Uthirameru, the village is divided into 30 wards, and those 30 wards, a leader has been assigned. So what are the eligibility for electing an election in that village is, the person should be the age of 37 to 70 years. The second eligibility is, the person should tell the government how much property he has and that property is legal or not. And secondly, they see that the person who is electing an election is a legal person or not, any case is on him or not. And then there is one rule that प्रिय श्री राहुल शुक्ला जी, सर, फैकल्टी मेंबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, शायद आपके बैच में जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, शायद ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन है आपके साथ। आपके पिछले वाले बैचेस से मिल चुका हूं, शायद साल में एक बार मुलाकात होती है आप लोगों से। सबसे पहले तो संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत कुछ बताया गया हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स ने। अगर मैं उनकी बात करूं तो सलोनी मौर्य, सलोनी पाठक, अनिल और हर्षिता, काफी कुछ जानकारी इन्होंने आपको दी। मैं उस पार्ट को थोड़ा स्किप करता हूं क्योंकि काफी चीजें इंटरनेट में अवेलेबल हैं, आप उनसे देख सकते हैं। जो आज का जो मूल विषय है वो है संविधान दिवस, और उसमें भी एक जो यूजीसी ने थीम बनाई है वो ये है, भारत लोकतंत्र की जननी है।
इसी पे बात करेंगे। संविधान दिवस में सबसे बड़ी बात, अगर हम 75 साल की उपलब्धि देखें इस देश की, तो वो ये है कि हमने संविधान को पूरी तरह आत्मसात किया है, पूरी तरह आत्मसात किया है। हम राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को किसी भी रूप में याद करें, लेकिन पिछले 75 साल में कोई एक भी उदाहरण इतिहास में अवेलेबल नहीं है जो ये कहे कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी भी चीफ मिनिस्टर ने सत्ता परिवर्तन के समय कोई अवरोध किया, जनमत का आदर किया। बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, बड़े से बड़े चीफ मिनिस्टर ने जनमत का आदर करते हुए सत्ता का हस्तांतरण संवैधानिक दायरे में रहकर किया है। कोई उदाहरण भारत के इतिहास में आजादी के बाद अवेलेबल नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र की मूल भावना को प्रदर्शित करता है, हमारे लोकतंत्र की शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं। हमारा संविधान एक पवित्र बुक है और उसका अक्षरशः पालन करना ये हम सबका कर्तव्य है। और आज हमारे मन में ये भाव आना चाहिए, ये कर्तव्य बोध की भावना आनी चाहिए कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, उसकी सेवा करनी है। यही संविधान दिवस मनाने का एक उद्देश्य है। अच्छा संविधान है, परिवर्तन हुए एक अलग इशू है। अच्छी चीज में भी परिवर्तन होते हैं, संशोधन होते हैं, ठीक है, लेकिन वो संविधान एक ऐसा संविधान है जिसने विश्व की सबसे बड़ी विविधताओं वाले देश को एक सूत्र में बांध रखा है, एक राष्ट्र में बांध रखा है, एक शक्ति के रूप में बांध रखा है। और इस देश ने लगातार 75 साल से हर जगह, हर क्षेत्र में प्रगति की है, समृद्धि की है। आप लोग शायद उस समृद्धि के या प्रगति के लेवल को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आप काफी बाद में आए हैं, लेकिन मेरी पीढ़ी ने, हमने इस प्रगति को महसूस किया है। गांव में, देहात में बिजली नहीं होती थी, आज लोग मोबाइल ही घूमते हैं। कम प्रगति है इतने बड़े देश में, एक बड़ी अचीवमेंट है। हर क्षेत्र में कहीं भी हो, आप प्रगति हमेशा की है। मैं उन संविधान के निर्माताओं को, उन देशवासियों को जिन्होंने संविधान का अक्षरशः पालन किया, आज इस मंच से नमन करता हूं। जो मुख्य विचार है भारत लोकतंत्र की जननी, अभी पहले तो बच्चे जो बोल रहे थे, एक ने तमिलनाडु के किसी मंदिर का जिक्र किया, चेन्नई से करीब 90 किलोमीटर दूर कांची के पास वो मंदिर है, उस मंदिर के अभिलेखों का जिक्र किया था। उसके बाद किसी ने जिक्र किया महाराज राम का। हमारे जो लोकतंत्र का मूल है, अगर आप उसकी जड़ों को टटोलें तो वो जड़ें हमारे सृष्टि के प्रारंभ से की आते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे पुराना जो ग्रंथ है, ओल्डेस्ट, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद से पुराना रिटन डॉक्यूमेंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ, ईरान का एक अवेस्ता ग्रंथ है, वो जरूर उसका समकालीन है, लेकिन ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। आप जैसे बहुतों को पता होगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और उन 10 मंडलों में भी दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। तो मैं आपको विश्व के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ का एक उदाहरण देता हूं। आपको आइडिया लग जाएगा कि भारत में लोकतंत्र कितना पुराना है। देखिए, भारत का एक नाम आर्यव्रत भी है, पुराना नाम। भगवान राम ने युद्ध किया, उसके बाद और महाभारत के युद्ध से पहले, भगवान राम के जन्म के बाद और महाभारत के पहले के बीच की घटना मैं आपको बताता हूं, शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी।
घटना इसलिए बताता हूं कि हमें अपना इतिहास भी जानना चाहिए, क्योंकि अगर इतिहास जानेंगे तो भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा, नहीं जानेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या हुआ और क्या आगे करना है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक घटना आती है, वहां एक युद्ध का वर्णन है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो लिखा होगा बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध। वो 10 राजाओं का युद्ध था, वो आर्यों के बीच में हुआ था। दोनों तरफ लड़ने वाली सेनाएं आर्यों की थी। कोई युद्ध आर्य और द्रविड़ के बीच का नहीं था, आर्य और यहाँ के मूल निवासियों का नहीं था। एक तरफ एक राजा थे सुदास, और दूसरी तरफ उनके विरुद्ध खड़े हुए 10 कबीलों के सरदार थे। इसलिए इसको बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा जाता है। नदियों के नाम बदल गए हैं तब से। एक पुरुषनी नदी का जिक्र आता है जो वर्तमान में रावी नदी है। पुरुषनी और ब्यास नदी के संगम के पास युद्ध लड़ा गया है, और उस युद्ध में सुदास जो अकेले लड़ रहे थे वो विजयी हुए, बाकी सारे लोग हारे। सुदास ने जिस पहले राज्य की स्थापना की वहीं से आर्यव्रत का प्रारंभ हुआ। हम जो भारत की बात करते हैं ना, भारत से पहले आर्यव्रत, और आर्यव्रत के जन्म की मैंने आपको कथा इसलिए सुनाई है, ये कहानी आपको इसलिए बताई है कि अगर आप गवर्नमेंट सिस्टम वहां देखें ऋग्वेद में, तो वो प्रणाली जो है वो पूरी तरह राजशाही के ऊपर डिपेंड नहीं है। उस प्रणाली में जैसे भी उन्होंने जिक्र किया सलोनी ने कि उसमें सभा भी थी, उसमें परिषद भी थी, ये 2 सदनों की तरह था। वहीं से अपना गणतंत्र की प्रारंभ होता है। तो गणतंत्र का प्रारंभ तब से हुआ है जब से हमारे पास रिटन एविडेंस अवेलेबल है। गणतंत्र आज का भी, ऐसे लोग जो कहते हैं कि 1947 में हमारा देश गणतंत्र हुआ, वो पूरे इतिहास को जानते ही नहीं। इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। दूसरी बात, थोड़ा सा आगे बढ़िए, बौद्ध काल में आइए। बौद्ध काल के एक राजवंश का जिक्र किया था उन्होंने, लिच्छवी राजवंश का, जो इतिहास का पहला गणराज्य था। और आगे बढ़िए, कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, उन्होंने पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का उसमें जिक्र किया है। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, उन्होंने पूरा जिक्र किया है। और 10वीं शताब्दी के मंदिर जिसके बारे में सलोनी बोल रही थी, वहां पूरा रिटन है कि क्षेत्र में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कैंडिडेट्स के क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कब हम कैंडिडेट्स को हटा सकते हैं, ये पूरा सिस्टम वहां लिखा हुआ है 10वीं शताब्दी का। तो आप इस बात को पूरी तरह आत्मसात कर सकते हैं कि लोकतंत्र इस देश के लिए नया नहीं है। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बच्चों से सिविल सर्विस के एग्जाम में कि विच कंट्री इज द मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी। तो बच्चे आंसर लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका को हम कहते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र का जन्म देश है। मैं आपको हजारों साल पुरानी बात बता रहा हूं। जिस 76वें संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन की बात की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इंडिया इज नॉट ओनली द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी नहीं है, इट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है यहां। तो आप खुद देखिए कि इस देश के इतिहास में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। वास्तव में इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यहीं से लोकतंत्र पूरी दुनिया में फैला। अब्राहम लिंकन ने जिस लोकतंत्र का जिक्र किया, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, वो तो हमारे पहले से मौजूद है।
मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि अगर आप सभी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, खासतौर से बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कारण दो है, पहली बात तो ये कि आप संस्कारों से ज्यादा जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं कि बीटेक के बच्चे संस्कारों से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ज्यादा जुड़े हुए हो ऐसा मैं महसूस करता हूं डे वन से, जब से आपके यहाँ का पहला बैच आया है। और दूसरा कारण है कि आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, कल आप किसी संस्था में जाएंगे, शिक्षक बनेंगे, तो आप लगभग उसी स्थिति में होंगे जिस स्थिति में आज हम हैं। तो मुझे आपके अंदर अपना आईना नजर आता है। आपको ये बात इसलिए बताई है कि कभी जब वक्त पड़े तो आप ही इस बात को अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें आधुनिक नहीं है। जो लोग आज की डेट में कहते हैं कि यूएसए इज द मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये बात गलत है। अब आइए संविधान के दिवस के मूल उद्देश्य पे। देखिए, हम अगर एक आम बात करें तो पढ़ाई के बाद बच्चे अक्सर पूछते हैं कितने का पैकेज, कितने की जॉब लगेगी, कितना हमारा पैकेज है, ये पूछते हैं ना, सारे बच्चे पूछते हैं। भाई डिग्री कर ली, प्रोफेशनल डिग्री है, हमें कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पैकेज मिलेगा, आप ही पूछते हैं। क्या हमारे दिमाग में कभी ये सवाल आया कि हम देश को क्या देंगे? मैं आपको एक हल्की बात से थोड़ा सा डार्कर मोड में ले जाना चाहता हूं। क्या हमारे दिमाग में कभी सवाल आया कि हमें इस देश को कुछ देना भी है या सिर्फ लेना है? हमें इस देश को कुछ देना भी है। किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल ये नहीं है, ये कॉमन सा सवाल है। मैं आपको किसी कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, आपको अपराधी नहीं साबित कर रहा, लेकिन हाँ, यह मन से खड़ा होकर मैं शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक दिन जरूर लगा रहा। आप सब एजुकेशन से रिलेटेड हैं, मेरी बात से पूरी तरह सहमत होंगे। ये व्यक्ति का विषय नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था का विषय है। एक 2.5 साल का बच्चा जिसके माता पिता आपके पास आते हैं लेके और स्कूल में भर्ती करा देते हैं कि बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा स्कूल की एजुकेशन करता है, ठीक है, आगे बढ़ा, इंटर कॉलेज में आ गया, आगे बढ़ा, डिग्री कॉलेज में आ गया, प्रोफेशनल डिग्री ले ली, जो भी पढ़ाई करनी है कर ली, और उसके बाद पीएचडी भी कर ली, रिसर्च भी कर ली। लास्ट में पूछता भाई एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि कितने का पैकेज मिलेगा, क्योंकि हमने कहीं उसको देशभक्ति पढ़ाई ही नहीं। अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा सटीक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा हमने केमिस्ट्री पढ़ाई, हमने फिजिक्स पढ़ाई, हमने मैथमेटिक्स पढ़ाई, हमने राष्ट्रभक्ति पढ़ाई, और हमारे बच्चों को पता कैसे लगेगा राष्ट्रभक्ति? इस प्रश्न पे जरा आप गंभीरता से विचार करें। एक मैं आपको घटना सुनाता हूं छोटी सी, और आपको उसी गहराई में ले जाने के लिए। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास एक पूरी पीढ़ी थी जो दुनिया की सबसे अलग पीढ़ी थी देशभक्तों की। वो हमेशा देश के बारे में सोचते थे, अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया उन्होंने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, सब कुछ दांव पे लगा दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं वीर सावरकर का। वीर सावरकर जो थे वो एक, उन्हें आपको पता हो शायद 2 बार काले पानी की सजा हुई थी, डबल 2 टाइम्स। और वीर सावरकर को काले पानी की सजा से ले जाना था, पूना की जेल में थे, और उनसे ही कहा गया आप अपनी पत्नी से अंतिम बार मिल सकते हैं। वीर सावरकर की पत्नी वहां पहुंची, 19 साल की उम्र थी उनकी पत्नी की, और वो सामने उन्होंने जब अपने पति को देखा तो ऊपर से नीचे तक वो लोहे से जकड़े हुए थे। इतना लोहा उनके शरीर पे था,
टॉप टू बॉटम कि वो चलना तो दूर, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो उनकी पत्नी रोने लगी। स्वाभाविक था, जिसके साथ जीवन बिताने का स्वप्न देखा हो, अगर वो इस हालत में खड़ा है तो स्वाभाविक था। वीर सावरकर एक टफ स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। एक क्षण को वो भी अवाक रह गए, फिर अपने आप को संभाला और अपनी पुत्री से बोले, जमुना नाम था उनका, 3 साल पहले ही शादी हुई थी। देखो, पति धर्म निभाने के लिए अगला जन्म, इस वक्त मुझे पुत्र धर्म निभाना है, मुझे जाना है। और देखो, हमारी पीढ़ियां हमारे बलिदान को, हमारी शहादत को याद रखेंगी। ये उनके शब्द थे, अंतिम शब्दों को चले गए। मैं नहीं कहता हूं, आप अपने मन से टटोल के देखिए आज कितना हम उनको याद कर पाते हैं। वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया इस देश के लिए, क्या आज की पीढ़ी हम उन्हें स्वतंत्रता दिवस, संविधान दिवस, 26 जनवरी के अलावा कभी याद करते हैं? आप अपने आप से सवाल पूछिए। सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग सोच सकते हैं। हम जब भी बात करते हैं अपने पैकेज की बात करते हैं, धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई जो अपनी पैकेज की बात करते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या घटती गई पिछले 75 सालों में जो राष्ट्रीय की बात करते हैं। और आज पूरी पीढ़ी आपके सामने ऐसी है जिसके मन में शायद ही कभी कोई विचार आता हो कि मुझे उस देश के लिए कुछ करना नहीं है। आज का अवसर अपने अंदर कर्तव्य बोध जगाने का अवसर है। जब आप प्रेम में होते हैं ना, तो बहुत नहीं लगता, वो कर्तव्य बोध बन जाता है। एक छोटी सी आपको इंसिडेंस बताता हूं। एक सन्यासी पहाड़ पे चढ़ रहा था, किसी तीर्थ यात्रा जा रहा था। एक लड़की मिली, अपने छोटे भाई को कंधे पे लटका के जा रही थी, पहाड़ी में, चेहरा लाल पड़ हुआ था। तो सन्यासी ने पूछा, बेटा बड़ा बोझ है? तो उसने सन्यासी को काट दिया, बोला बोझ नहीं है, भाई है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो आप दायित्व तो अपने आप आ जाता है। अपने राष्ट्र को प्रेम करिए। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, शायद दोबारा मौका न मिले आपसे बात करने का। अपने राष्ट्र को प्रेम करिए, अपनी प्रार्थनाओं में राष्ट्र को शामिल करिए। आप सभी लोग प्रार्थना करते हैं, मैं रोजाना सुनता हूं, और आपकी प्रार्थना को लेकर मैंने 15 अगस्त में जब आजादी का अमृत महोत्सव का यहाँ फंक्शन चला था, मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे ब्रिगेड के बच्चे, हमारे बीपीसी के बच्चे सुबह प्रार्थना करते हैं, हमको मन की शक्ति दे। इस बात का मैंने जिक्र किया था। अब वो प्रार्थना एक प्रार्थना नहीं, वो एक जीवन पद्धति है। आप देखिए, आप खुद महसूस करते होंगे उस प्रार्थना को करने के बाद आपका पूरा शरीर उस स्फूर्ति, उत्साह से भरा रहता है। उसमें अंतिम लाइन जो आप गाते हैं, ये न सोचो हमने किया है अर्पण। आज इस बात को सोचने का दिन है। उस प्रार्थना के शब्दों को अपने आचरण में लाने का दिन है। देश आपका है। अभी हम 75 वर्ष मना चुके हैं। मुझे यकीन है कि जब हम 100वां वर्ष मना रहे होंगे, आप सब उस फंक्शन में होंगे, तब आप ये गर्व कर सकें कि हाँ, पिछले 25 साल में हमने अपने देश की इस सेक्टर में सेवा की। ये मैं आपको 25 साल बाद की स्थिति बता रहा हूं। 100वें अमृत महोत्सव जब मना रहा हो, तो आप ये गर्व से कह सकें कि हाँ, हमने अपने देश की सेवा की। इसके लिए अपनी भूमिकाओं का रेखांकन आप जितना शीघ्र कर लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये देश युवाओं का देश है। आपकी जो जनरेशन है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है आगामी 25 सालों में, और वही इस देश को महाशक्ति बनाएगी।
चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर हो, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पावर हो, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च इनोवेशन हो, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, उसके लिए अपने मन को, अपने मन की संकल्प शक्ति को और सुदृढ़ बनाना है। क्या केवल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इस देश को महान बनाएगा? एग्रीकल्चर फंडामेंटल चीज है, जिस देश में नहीं है वो कभी डेवलपमेंट नहीं करते। तो हाँ, ये बात सच है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इस देश को महान बनाएगा। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनाएगा? हाँ, बनाएगा। क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बनाएगा इस देश को महान? बनाएगा। लेकिन इनसे भी ज्यादा इस देश को अगर महान बनाएगा तो युवा शक्ति का आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। जब हमारे युवा आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे, हमारे युवा अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे, हमारे युवा के मन में ये भाव रहेगा कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, तब ये देश महान बनेगा, तब ये राष्ट्र उस शिखर पे होगा जिसके लिए लोगों ने अपने प्राण अर्पित कर दिए। यही संविधान दिवस मनाने का मूल है। वापस लौटते हैं जहां से मैंने प्रश्न शुरू किया था।